Hello guys, continuing the series of tenses, we are doing past tense and today we will do the third subtype of past tense, that is past perfect tense. Yes, see the past tense, and in past tense we always use the second form of the verb, and the perfect tense we always use the third form of a verb. Yes, in past tense we will always use the second form of verb, and in perfect tense we always use the third form of verb. Now see the form of past perfect tense. Yes, subject plus had. Had is the second form of have. Second form of have, and third form of verb third form of verb, that is called the past participle plus object. Yes, verb की second form will come here as a helping verb, and the third form is the main verb. Now let's see the uses of past tense. Yes, past perfect tense. Past perfect tense is used to denote an action completed before a certain moment in the past. Past के निश्चित समय से पहले जो एक्शन कंप्लीट हुआ, पास्ट में किसी निश्चित समय से पहले जो एक्शन कंप्लीट हुआ, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, I met him in Jaipur in 1980. Yes, you will say what I am doing. Met is the second form of verb, and I have already told you second form plus verb की third form. Had plus verb की third form in perfect tense. Then only V2. Yeah. 1980 is a certain moment. A certain moment that is used in past indefinite tense. But I'm talking in past perfect tense, the action completed before a certain moment, means उस certain moment से भी पहले. So there is the second form is right according to the definite time. Okay, and now let's see the second example. I had seen him last 5 years before. It means 5 years ago, 5 साल पहले. यानी कि 5 years is a certain moment, but the action was completed before 5 years. So before a certain moment when action is completed, that is called past perfect tense. I hope you have understand very well. Let's see the second uses. If two actions happened in the past, it may be necessary to show which action happened earlier than the other. Yes, पास्ट में अगर कोई एक्शन होता है, दो एक्शन एक साथ होते हैं और उन एक्शंस में से कौन सा एक्शन दूसरे एक्शन से पहले होता है, तो the simple past is used in one clause, the succeeding action started. जैसे ही succeeding action जो है start होता है, तो वहाँ पर simple past tense use होता है. Yes, there are two types of verb, succeeding and proceeding. Yes, in a proceeding action, two type of action, a succeeding and a proceeding. हाँ जी, proceeding action एंड सक्सीडिंग एक्शन. सक्सीडिंग एक्शन में आप सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करेंगे. सिंपल पास्ट टेंस, आई हैड गॉन टू जयपुर लास्ट वीक बिफोर माई ब्रदर केम. विच एक्शन हैपन आफ्टर द फर्स्ट एक्शन. यस, पहले एक्शन से जो एक्शन बाद में होता है, जो एक्शन बाद में होता है उसके साथ वर्ब की हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे
पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस ही हमारा क्या है, सक्सीडिंग एक्शन। एंड आई हैड गॉन टू जयपुर लास्ट वीक बिफोर माई ब्रदर केम। इसको समझने की कोशिश कीजिए कि मेरे ब्रदर के आने से पहले मैं जयपुर जा चुका था। तो जयपुर पहले गया या ब्रदर पहले आया? तो ब्रदर बाद में आया, ब्रदर के आने से पहले। तो जो एक्शन पहले हुआ उसके लिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो एक्शन बाद में हुआ वहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस की फॉर्म यूज़ होगी वी सेकेंड। द ट्रेन हैड अराइव्ड बिफोर वी रीच द स्टेशन। ट्रेन हैड अराइव्ड बिफोर वी रीच द स्टेशन, हमारे स्टेशन पहुँचने से पहले, यानी कि हम स्टेशन जाने में लेट हो गए और ट्रेन पहले आ गई। तो जो एक्शन पहले हुआ उसके लिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो एक्शन बाद में हुआ दैट एक्शन इज कॉल्ड सक्सीडिंग एक्शन, और फॉर सक्सीडिंग एक्शन वी विल यूज़ वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब ये प्रोसीडिंग एंड सक्सीडिंग एक्शन क्या है इसको हम समझेंगे अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में। Sometimes proceeding action is implied and is indicated by। कई बार प्रोसीडिंग एक्शन इम्प्लीड किया जाता है और उसको इंडिकेट करते हैं इन वर्ड्स के द्वारा। एवर, जस्ट, रिसेंटली, यट, ऑलरेडी, सो फार, टिल, by the time, before, after, etc. These words indicate the proceeding action. I had finished my work before he came. Yes, I had finished my work before से पहले। तो ये जो प्रोसीडिंग एक्शन है वो क्या है, हैड फिनिश्ड। जो काम कंप्लीट हो चुका है, एक्शन कंप्लीट हो चुका है, दैट इज़ प्रोसीडिंग एक्शन। और किससे पहले, इसके साथ क्या लगा, बिफोर। बिफोर के बाद जो है वो हमारा सक्सीडिंग एक्शन स्टार्ट हुआ। आई हैड ऑलरेडी डन माई वर्क। तो ऑलरेडी वर्ड इंडिकेट दैट एक्शन इज proceeding. Yes, there are some words that show that comes with preceding actions. Next, this tense is also used as time expression with words like। ये जो टेंस है वो टाइम एक्सप्रेशन यानी कि ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन को शो करने के लिए भी जो है इस जो टेंस का हम यूज़ करते हैं। और टाइम की जो ड्यूरेशन है, टाइम एक्सप्रेशन है, वो सच वर्ड्स, इन वर्ड्स के द्वारा जो है शो किया जाता है। सिंस, फॉर, होल, ऑल, थ्रू आउट, एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी, शी हैड नॉन हिम for 2 years. Yes, she had known him for 2 years. So for is used। इस वर्ड से क्या पता चला कि that is for क्या शो करता है, टाइम ड्यूरेशन को, कि वो कितने साल से उसे जानता था, 2 साल से। I had completed my work all night। मैं पूरी रात मैंने अपना काम कर लिया था। तो whole night, whole word shows the duration of time. Past perfect tense used with verbs such as। कुछ जो वर्ब्स होती हैं वो भी इंडिकेट करती हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। फॉर एग्जाम्पल, वांट, होप, एक्सपेक्ट, थिंक, सपोज, मीन, इंटेंड, एट्सेट्रा। ये सब जो है यूज़ किए जाते हैं टू इंडिकेट दैट द एक्शन मेंशन डिड नॉट टेक प्लेस। ये जो वर्ड्स हैं, ये जो वर्ब हैं, ये शो करती है, इंडिकेट करती है कि एक्शन जो है वो नहीं हुआ, एक्शन जो है वो नहीं हुआ। एक्शन करने की इच्छा तो थी लेकिन एक्शन नहीं हुआ। I had wanted to help my brother। wanted this verb show, had के साथ wanted this verb show that the action जो था
वो करने का इच्छा तो थी, दैट आई हैड वांटेड टू हेल्प माई ब्रदर, मैं अपनी ब्रदर की जो है हेल्प करना चाहता था, बट कुडंट हेल्प, लेकिन हेल्प नहीं कर सका। सो दिस शोज द एक्शन जो है वो इच्छा तो थी करने की, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। शी हैड होप्ड दैट आई वुड सेंड हर मनी, शी हैड होप्ड, उसे आशा थी कि मैं उसे मनी सेंड करूँगा, बट नॉट सेंड, लेकिन मनी सेंड नहीं की। मीन्स कोई भी इच्छा रखना, आशा रखना, कोई भी होप रखना, तो यानी कि ये जो भी वर्ब्स हैं, एक्सपेक्टेशन करना, होप करना, वांट करना, एंड थिंक, सपोज, मीन, इंटेंट का मीनिंग भी यही है, इच्छा रखना, चाहना। तो ये सब जो है जब वर्ब आ जाती है तो वहाँ पर भी आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। सो गाइज, दीज वर द रूल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड डू द मोर एंड मोर एक्सरसाइज फ्रॉम योर practice exercise book. I hope that you have understood, and if you do more and more practice, definitely you can do very you can do easily the use of this tense. Okay guys, thanks.